So now let's continue. Now we are going to do higher order derivative of parametric function. अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा. एक तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, उसके साथ पैरामेट्रिक फंक्शंस भी है. So first we have to use parametric differentiation. So we have already done parametric differentiation of the function. ठीक है, तो चलो solution start करते हैं with this example. Okay, if this question is asked in exam, students, it will carry 3 marks. इसका ये weightage है. Write down solution for the problem. तो सबसे पहले तो देखो हमें पता है d2y by dx2 directly नहीं मिलता है. We don't get the second order derivative. First we have to find out the first order derivative. तो सबसे पहले हमें dy by dx निकालना है. तो dy by dx निकालने के लिए we will have to use differentiation of parametric functions. Write down solution. Consider write down x as well as y. तो x is equal to या y and x लिखो, हम वैसा करते हैं ना हमेशा. तो y is equal to 2a into t and x is equal to a into t square. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2. Now we'll differentiate y as well as x with respect to the parameter t. अब दिया नहीं है तो क्या हो गया, t is a parameter. ठीक है, चलो राइट डाउन. एग्जाम में देंगे जनरली, वो दे गिव इन एग्जाम. तो डिफरेंशिएटिंग ऐसा लिखो, डिफरेंशिएटिंग y and x with respect to t. तो चलो क्विकली टेल मी व्हाट इज dy by dt. Two way. Correct, very good. So dy by dt is nothing but 2a, and what is dx by dt? 280 or 2t. Yes, absolutely correct. Both of you are correct. 2a into t. ठीक है, अभी स्टेप्स में बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हम पहले ही कर चुके हैं. तो अभी हमें यहाँ से तो dy by dx मिलेगा ना. नाउ इसके बाद देखो, नाउ dy by dx is nothing but equal to dy by dt upon dx by dt. ठीक है ना, dy by dx कैसे मिलता है, dy by dt upon dx by dt. So this is further equal to dy by dt. So how much is dy by dt? So it is nothing but 2a. And how much is dx by dt? So it is nothing but 2a into t. So therefore, how much is dy by dx? So dy by dx is nothing but 1 by t. 2a 2a गया, 1 by t बच गया. तो हमें हमारा dy by dx मिल चुका है, बट dy by dx नहीं चाहिए हमें, तो ये प्रूव करना है. बट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d2y by dx2. We will find out the second order derivative. Now after finding dy by dx, d2y by dx2 कैसे मिलेगा? So we will have to differentiate this with respect to x. t वाला पार्ट हो गया, अभी इसका डेरिवेटिव हमें with respect to x लेना पड़ेगा because we want d2y by dx2. तो लिखो अभी आप आगे नेक्स्ट लाइन पे differentiating, or you can write down, yeah, लिखो differentiating, or you can write down now differentiating with respect to x. With respect to x डेरिवेटिव लेना है हमें. So what will happen? चलो I'll continue it out over there. तो लिखो with respect to x है, तो दोनों साइड पे हमें d by dx लेना पड़ेगा. Okay, so write down what do we get after this step. So on the left hand side we get d by dx of dy by dx, and this is equal to d by dx of 1 by t. We have taken d by dx on both the sides of equality. Now we know that d by dx of dy by dx is nothing but d2y by dx2. But
Now if you observe, this is a function of t and we are supposed to differentiate with respect to x, तो हम chain rule apply करेंगे. We will be applying the chain rule of derivative. So how do we write down this? Write down. This will be written as d by dt of 1 by t into derivative of t with respect to x. मतलब कैसे हो गया कि अगर ये dt कैंसिल हो जाए, ऐसा कैंसिल होता नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो. अगर ये dt कैंसिल हो जाए तो d by dx बचेगा. आप ऐसे याद रखो, ये t का वेरिएबल है, so we have to differentiate t with respect to x. So that is the reason why we write down d by dt of 1 by t into dt by dx. ठीक है, उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट इस चेन रूल से हम जाते हैं. डायरेक्टली कैसे लिखना है वो भी समझाऊंगा मैं आपको. तो ये तो पहले ये लिख लो आप. ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, d by dt of 1 by t लेना है हमें. तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर d2y by dx2. अच्छा, ये यहाँ पे रीजन में लिख देता हूँ. दिस स्टेप इज बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव. मतलब जो कंपोजिट फंक्शन है ना, उसका कंसेप्ट चेन रूल हमने यूज किया है यहाँ पे. तो d2y by dx2 इज फर्दर इक्वल टू 1 by t का डेरिवेटिव is minus 1 by t square into dt by dx. So dt by dx is nothing but 1 upon dx by dt. dt by dx का रेसिप्रोकल क्या है? तो 1 upon dx by dt है ना. चलो, अभी इसको अगर आपको डायरेक्टली करना है, आई वुड सजेस्ट चेन रूल से ही करो. बट इफ यू वांट टू डू दिस डायरेक्टली, ऐसा देखो, ऐसा भी आप समझ सकते हो. d by dx ऑफ 1 by t अगर आपको डायरेक्टली लेना है, ले सकते हो, नो इशू. तो इसका डेरिवेटिव ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग t का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो 1 by t का डेरिवेटिव इज माइनस 1 by t स्क्वायर एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इनटू dt by dx आ जाएगा. देखो ऐसा मिलता है. देखो यही चीज हमें यहाँ पे मिल गई, माइनस 1 by t स्क्वायर इंटू dt बाई dx मिल गई. तो अगर आपको ये डायरेक्टली ऐसा चेन रूल से नहीं लिखना है, तो d बाई dx ऑफ 1 बाई t कैन बी रिटर्न एज इसका डेरिवेटिव लेने का. तो 1 बाई t का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटू dt बाई dx आएगा. एम आई क्लियर विद बोथ द एक्सप्लेनेशंस? यस, यस सर. ओके, ठीक है. जो चाहे मर्जी आप कर लो, ऐसा करोगे तो भी वही आएगा, ऐसा करोगे तो भी आपको वही चीज मिलने वाली है. ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, आई जस्ट रब दिस ऑफ. ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा था. चलो, नाउ व्हाट वी डू इज कि हमें तो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है. अभी सपोज वो बोलता फाइंड d2y by dx2. क्वेश्चन में अगर वो बोलता फाइंड d2y by dx2, तो वी कुड हैव स्टॉप्ड ओवर हियर. बट हमें प्रूव करना है, और ये प्रूव करना है हमें. अभी इसमें दो ऑप्शंस है, वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. तो चलो पहले हम dx by dt का वैल्यू डाल देते हैं. तो व्हाट इज dx by dt? दिस, लेट अस सब्स्टिट्यूट इट आउट ओवर हियर. तो लिखो देयरफॉर d2y by dx2 is equal to minus 1 by t square remaining same into 1 upon dx by dt का वैल्यू. तो dx by dt का वैल्यू इज नथिंग बट 2a into t. d2y by dx2 हमें मिल गया. ठीक है. नाउ dx by dt का वैल्यू कहां से मिला, ये देखो यहाँ से. dx by dt का वैल्यू इज 2a into t. ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड, अभी इसमें वापस दो ऑप्शंस है. एक तो हम वी कैन कंसिडर LHS एंड ऑब्टेन RHS. मतलब ये जो d2y by dx2 मिला, ये हम LHS में डालें और राइट हैंड साइड ऑब्टेन करें. अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू दिस अहेड एंड देन वी कैन गेट द कंप्लीट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे. तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूशन तो आप खुद भी कर सकते हो. तो जो अलग है वो मैं करके बताता हूँ. ओके, नाउ व्हाट वी डू ओवर हियर, ध्यान से देखो आप. t स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 से, वी वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y. तो देयर आर टू प्रोसीजर. एक तो ये d2y by dx2 LHS में डालो, उसको सॉल्व करो, आपको RHS मिल जाएगा. या तो फिर इसको हम इक्वेशन 1 2 को यूज करके सॉल्व करें और फिर पूरा क्वेश्चन अपने को एज इट इज मिल जाए. तो लेट्स डू दैट, यू नो.
कुछ तो डिफरेंट करते हैं अपन। तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? तो टी स्क्वायर का वैल्यू इज x बाई, चेकआउट, इक्वेशन 2 से टी स्क्वायर का वैल्यू इज x बाई एंड 1 अपॉन 2a इंटू टी। 2a इंटू टी का वैल्यू इज नथिंग बट y। जो आसान है वो आप करो, जो समझने वाला है वो मैं करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो हियर यू राइट डाउन द रीजन फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिलाइए। अब देखो ना, चाहिए हमें x और y। नाउ दिस a विल गो इन द न्यूमरेटर। तो चलो फाइनल फ्यू स्टेप। तो देयरफॉर d2y by dx2 is equal to, this will become minus a upon xy। चेक आउट, a न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल x इंटू वाई मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर, हाँ ये फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लो, ये मैं यहाँ पे रब करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो दिस स्टेप, इसके बाद 1 एंड 2 से हमें ये स्टेप मिल गया। तो ये जरा मैं फ्रॉम 1 एंड 2 हटा देता हूँ, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई नीड स्पेस। तो देयरफॉर व्हाट डू वी गेट स्टूडेंट्स? तो देयरफॉर d2y by dx2, अच्छा x इंटू वाई को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ना, x इंटू वाई इंटू d2y by dx2 इज इक्वल टू नेगेटिव a। और जब ये नेगेटिव a इधर आ जाएगा तो वी गेट xy इंटू d2y by dx2 प्लस a इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, देखो आ गया जो हमें चाहिए था। तो पूरा प्रोसीजर ध्यान से देख लो आप। तो हेडिंग क्या दिया हुआ है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए थे, तो वी हैव टू यूज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो वहां से हमने dy by dx निकाल लिया। देन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड सिंप्लीफाइंग। सपोज अगर वो बोलता इसी जगह पे, चलो पहले ये लिख लो आप यहाँ तक। इज इट डन टिल हियर एवरीवन? Yes, sir. ओके। अभी अभी तो प्रूव करने को दिया है। सपोज वो बोलता है, ऐसे क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट वही करना है। फाइंड d2y by dx2 बोलता, अगर वो हमें बोलता फाइंड d2y by dx2, तो हम हमारा आंसर यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। इफ इट टेल्स अस फाइंड, तो आई कैन स्टॉप द आंसर ओवर हियर। बट उसने प्रूफ करने को दिया था, इसीलिए फिर गाड़ी को हमने आगे बढ़ाया। अब यही आप d2y by dx2 है ना, ये वाला या ये वाला कोई भी देखो आप, ये d2y by dx2 अगर आप यहाँ पे डालोगे तो ओरली देखो आप, इफ आई सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, ये xy और ये xy कैंसिल हो गया, तो माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। तो ये अगर आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपको ऐसा करना है ऐसा कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके करना है सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं अभी। ठीक है, तो आई रब दिस ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चन। every concept, every question, they are equally important। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, नेवर नो। गिव मी अ मिनट। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो आप, 9th वन। इफ x is equal to a bracket 1 plus cos theta, y is equal to a bracket theta plus sin theta, then find d2y by dx2 at theta equal to pi by 2।
ठीक है, तो एक प्रूव वाला प्रॉब्लम ले लिया, अभी एक फाइंड वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो दोनों कवर हो जाएगा। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। एक्स दिया है, वाई दिया है, हमें सबसे पहले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ना उसमें थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अगेन इफ दिस इज आस्क्ड 3 मार्क्स। ठीक है, चलो सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, 9th क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम आवर सेम यूनिट, कौन सा चल रहा है, यूनिट 13 में से कंटिन्यू हो रहा है। दिस इज फ्रॉम यूनिट 13। So let's consider y as well as x. So now let us do it one by one. So consider, first of all, let us consider y is equal to a bracket theta plus sin theta. So differentiating with respect to theta, clearly दिख रहा है theta is a parameter. So differentiating with respect to theta. चलो tell me what will be dy by d theta. Can anyone tell me? A into cos theta. No, not completely correct. A into 1 plus cos theta. Yes, now it is correct. A into bracket 1 plus cos theta. ठीक है, दोनों साइड पे d by d थीटा लेंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में ये चीज हमने ऑलरेडी की हुई है। तो थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा, तो ये हमारा dy by d थीटा हो गया। नाउ x, अभी x कंसिडर करेंगे, तो x इज a ब्रैकेट 1 plus cos theta. So differentiating with respect to theta. So what is dx by d theta? Minus A into sin theta. Yes, absolutely. Minus a into sin theta. Correct. A remaining same, 1 का डेरिवेटिव 0, cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta. So it is minus a sin theta. अब हमें चाहिए dy by dx. dy by d theta मिल गया, dx by d theta मिल गया. Now we need dy by dx. So now dy by dx is nothing but equal to dy by d theta upon dx by d theta. So what is dy by d theta? dy by d theta is a bracket 1 plus cos theta upon dx by d theta is minus a sin theta. तो सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है और हमने dy by dx निकाल लिया है, बट वी नीड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, नाउ बिफोर वी नो, आफ्टर दिस वी आर सपोज टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बट बिफोर वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे जरा हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, बिकॉज इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और बाद में जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो अननेसेसरी u by v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी थीटा का फंक्शन है, नीचे भी थीटा का फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करके इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेट अस सिंप्लीफाई दिस पार्ट। तो वन थिंग यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, एक तो सबसे पहले ये a कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रिटर्न देयरफॉर dy by dx is further equal to माइनस साइन रिमेनिंग सेम 1 plus cos theta का फॉर्मूला है, so that is nothing but 2 cos square theta by 2 and sin theta का फॉर्मूला, so that is nothing but 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 है। sin theta का फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। Now let's carry out the cancellation. तो ये 2 गया, एक cos theta by 2 गया, तो cos theta by 2 upon sin theta by 2 with the minus sign remains. So how much is dy by dx? तो लिखो therefore dy by dx is nothing but equal to minus cot theta by 2. Cot theta by 2 बच गया हमारे पास dy by dx. So this is the first order derivative
ये हमारा dy by dx है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया ताकि ये फंक्शन सिंपल हो जाए। देखो एकदम सिंपल हो गया फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना आसान है। अकॉर्डिंग टू द केस एज पर द रिक्वायरमेंट वी सिंप्लीफाई। नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखो इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लीज रिमेंबर dy by dx मिलने के बाद ऐसे जो एग्जांपल्स है उसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा। पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर करना पड़ेगा, फिर dy by dx मिलेगा। हेलो सर, बोर्ड नहीं दिसत है। प्रोसीजर। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy by dx लेंगे हम दोनों साइड पे। तो रिट डाउन देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड dy by dx ऑफ dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाएगा dy by dx ऑफ cot थीटा बाई 2। अभी आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो भी डायरेक्टली ले सकते हो, या चेन रूल अप्लाई करके करना है तो भी आप कर सकते हो। तो dy by dx ऑफ dy by dx इज d2y by dx2, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन रिमेनिंग सेम। चेन रूल से जाते हैं, तो हाउ विल बी राइट डाउन दिस? सो इट विल बी रिटर्न एज d by d थीटा ऑफ cot थीटा बाई 2। जो पैरामीटर या जो वेरिएबल यहाँ पे है वही सेम वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, आप ऐसे याद रखो, मतलब ये डी थीटा का या तो डी बाई डी एक्स आपके पास बचना चाहिए व्हेन यू अप्लाई चेन रूल। ये चेन रूल से आया। तो देयरफॉर d2y by dx2 is further equal to minus sign. Now चलो टेल मी व्हाट विल बी d by d theta of cot theta by 2। इसका डेरिवेटिव बताओ। Minus थीटा बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना ही कि कुछ और आएगा आगे? into 1/2। Yes, absolutely, into 1/2। Very good। Into d theta by dx is nothing but 1 upon dx by d theta। ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल भी लिख दिया ताकि स्टेप्स बच जाए अपने। ट्राई टू सेव टाइम। तो इसका डेरिवेटिव ये मिल चुका है हमें, और इसका रेसिप्रोकल ये है। नाउ टू थिंग्स, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dx by d theta। dx by d theta का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे at this place। So therefore d2y by dx2 is further equal to minus of minus plus। तो ये कैसे हो जाएगा? This will become 1 upon 2 into, now cosec square theta by 2 is 1 upon sin square theta by 2 into dx by d theta। What is dx by d theta, students? So dx by d theta is nothing but minus a into sin theta। dx by d theta का जो वैल्यू है that is nothing but minus a into sin theta। So this is our d2y by dx2। थोड़ा डायरेक्टली लिखा है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर इज 1 बाय साइन स्क्वायर, और dx by d theta का यहाँ से वैल्यू डाल दिया। Now substitute the value of theta over here and solve। That's it, problem is almost over। theta का वैल्यू डालो, so how to write down? So see, it should be written this way। Therefore d2y by dx2 when theta equals, what is value of theta? तो थीटा का वैल्यू इज पाई बाई 2। थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 दिया है। अब दोनों जगह पे थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 डालो एंड सॉल्व इट एंड टेल मी द फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो जब हम x का वैल्यू थीटा का वैल्यू इसमें डालेंगे पाई बाई 2, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रिमेनिंग सेम। अब थोड़ा डायरेक्टली वर्किंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
नाउ थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 डालेंगे तो दिस विल बिकम पाई बाय 4, तो दिस इज गोइंग टू बिकम साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम 1/2 इनटू दिस इज माइनस ए साइन पाई बाय 2 का वैल्यू इज 1, दिस ब्रैकेट क्लोजेस। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो द फाइनल आंसर इज नथिंग बट -1/a. So d2y by dx2 when theta is pi by 2 is nothing but -1/a. So this is how the problem is to be done. तो अगर प्रूफ करने को दिया है तो we will have to reach till there, और अगर फाइंड करने को दिया है और अगर कोई थीटा का वैल्यू, थीटा या टी का वैल्यू दिया है तो यू विल हैव टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो एट पूछेगा ही, तो सपोज अगर सिर्फ d2y by dx2 पूछा तो यू जस्ट फाइंड आउट d2y by dx2, यहाँ तक आप ये कैलकुलेशन करो d2y by dx2 का एंड यू लीव इट। अगर थीटा या टी का वैल्यू दिया है तो फिर आपको डाल के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस प्रोसीजर। Yes, sir. दोनों में सेम है, वहां पे हमने प्रूव किया, यहाँ पे हमने फाइंड किया, वो बेसिक डिफरेंस है उसमें, और जो प्रोसीजर था d2y by dx2 निकालने का वो सेम था। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।